So, hi everyone. Welcome to this podcast. This is the Empathy Life Care podcast episodes, and this podcast is sponsored by Empathy Life Care. So, Empathy Life Care is a healthcare learning and online doctor consulting platform. We have a list of doctors associated with us in different healthcare departments, which includes we basically focus on four key departments. First is dental, and then skin treatment, and hair treatment, and of course mental health care. So these are the four main key areas that we are focusing as of now through our Empathy Life Care platform. So now, talking about this podcast, so this is going to be mental health care. Topic is going to be mental health care and what are the challenges normally people facing through this. And we have come up with a lot of stats in this healthcare mental health care topic. So we're gonna deep dive on that, stats also, and then come up some insights about this and how we can get cure about this, mental health. So now, hi, my name is Mridul. So I'm your host for this podcast, and we have Dr. Jarka Khan, who is co-hosting this podcast. So Everyone. and yeah, hi. So we have a special guest with us today, Dr. Surabhi Mitra. So I would request Dr. Jarka to say a few words about Dr. Surabhi, and then we'll start with some sort of starts, and then we'll start deep dive with the topic. Yeah. Yeah. Hello, Dr. Surbe. Welcome. Hello, So, Zarka. yeah. Now, Dr. Surbe is a distinguished psychiatrist specializing in child and adolescent forensic psychiatry with a remarkable journey that's marked by both academic excellence and clinical expertise. As a dedicated PhD scholar, she dwells into the intricacies of psychiatric care for young individuals and forensic aspects of mental health. Dr. Mitra's commitment extends to addressing addiction, holding a fellowship in de addiction, and campaigning the mental health needs of the LGBTQ community as a certified expert in sexual orientation and gender identity, mental health. Beyond her clinical practice, she amplifies her impact through public speaking, engagements, insightful writing, advocacy work, establishing herself as an influential voice in the realm of human rights. We welcome you, ma'am. Thank you so much, Zarka, for this wonderful, introduction that you gave about me. You were I very hope I thorough with it. something. Yeah, you were Guys, very thorough with it. And thank Yeah. you very much for the invitation to both of you, Mirdul and Zarka, for speaking on a topic which is very close to my heart, that is mental health. yeah, and in fact, it's my pleasure that to have you in this podcast today. And definitely, we're going to deep dive on the mental health topic because why I'm mentioning this as India's strongest taboo. The reason behind we normally don't consider mental health as a real health issue actually till the date. Okay, Yes. we consider our other health issues going to be one of the priority, but not mental health as the priority as of now. And that's I think throughout my research, I did some research. My background is also I'm a market researcher, and I'm you know running my own farm where we do research. So there, that's why one of the knowledge partner of this podcast is Market Research Universe. So we did me and my team also did some research, and we got to some data actually, which mentioning that recently published of WHO report, a survey report, that they are saying as per the survey report that 1 out of 4
of Indian, is actually facing mental health issues in their life. And this is actually recent data. Earlier it was 1 out of 7. Now it is Okay. 1 out. So number is increasing, and this is actually very serious number that we have to understand here. Why this is increasing? And if I some other research, we got to know that it's around 60 to 70 million people in India suffer from common or severe mental disorders. Okay, and here also 60 and 70 million, which is again a huge number. And some of the other stats is saying data that India is the world's suicidal capital, actually suicide capital, with over 2.6 lakhs, okay, cases of suicide in a year. Per year, 2.6 lakhs suicides happening in India. And one of the key reason is mental health issues, or depressions and all. So this all research or stats is saying that mental health, because of mental health, suicides happening, there are mental disorders happening and all. So still the numbers is increasing, but still we are not taking serious, we are not coming up upfrontly this kind of a mental health and all. So that's the reason that I invited you, because you are very eminent person here, and being a psychiatrist yourself. So I think you're the best person to give some more light on this, to make some more understanding or insights of this particular topic, which I think still our society considered as a taboo. So please enlighten us with this topic. Why, first is why this is still a taboo, and another is, of course, the number is increasing. So why? Because you are a psychiatrist, a lot of daily life you are facing a lot of cases of this mental health Yeah. and all. So why this this numbers is increasing, mental health issues is increasing, and why this is still a taboo? Please, yeah, go ahead. Thank you, Mridul. So, what happens is what you said, numbers are increasing and it being a taboo. So, both of these things are quite interrelated. So, because it is a taboo, people don't have access to mental health care, and that is the reason the numbers are increasing. It's Mhm. also vice versa, that the numbers are increasing, and that is the reason it is becoming more and more of a taboo, because they think कि mental health तो ठीक ही नहीं हो सकती, mental Mhm. health issues तो ठीक ही नहीं हो सकते. इस Mhm. रीजन से क्या फायदा है डॉक्टर के पास जाने का, या क्या फायदा है मेडिकेशन लेने का. Mhm. That is also the reason the Mhm. numbers are increasing. Mhm. Secondly, if you have other stats, I think there is only one psychiatrist in Mhm. India Mhm. per 10 lakh population almost. So how can one psychiatrist serve a population of 10 lakh? It's not possible. I mean, I'm Shocking. just telling you very roughly. Yeah. Mhm. So again, there is not enough healthcare. अच्छी खासी healthcare नहीं है, अच्छे खासे hospitals नहीं है. उसके Mhm. वजह से mental health awareness भी नहीं है. Awareness ना रहने की वजह से, again, even if the people feel that no, there is certain issue with my mental health, I should Mhm. approach a doctor, but they don't know where to go or which Mhm. place to approach. So Mhm. that is the reason, again, the numbers are increasing and it is becoming more and more of a stigmatized topic. Yeah, yeah. कि अगर ये ठीक होता तो इसके डॉक्टर्स भी ज्यादा होते, अगर ये ठीक हो सकता था तो इसके हॉस्पिटल्स भी ज्यादा होते. लेकिन Mhm. गवर्नमेंट इस पे इतना काम नहीं कर रही है, या फिर डॉक्टर्स इस पे इतना काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स खुद ये सब्जेक्ट चूज करने के लिए नहीं देखते हैं. तो व्हाट कुड बी द रीजन? दैट इज Mhm. अगेन समथिंग दैट द कॉमन पब्लिक थिंक्स अबाउट. एंड फोर्थली, जब आकर किसी साइकेट्रिस्ट के चेंबर के सामने आप बैठ भी जाओ, तो पीपल Mhm. हैव दिस पैरानोइया दैट other people who are looking for other doctors are actually looking at us, and they are talking about us because we Mhm. are sitting at a psychiatrist's clinic. That means कि हमें कुछ गड़बड़ है. और गड़बड़ भी ऐसी साधारण गड़बड़ नहीं समझते लोग. लाइक पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ साइकोटिक लोग नहीं जाते. People with depression, anxiety, obsessions, addictions, multiple things, like multiple type of people come to us. But Mhm. there is a common culture in the society that they feel कि
नहीं, साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल ही जाते हैं, और जो साइकेट्रिस्ट है वो भी खुद पागल हो जाते हैं धीरे धीरे पेशेंट देख देख। Yeah. So this is the notion that is there, and that is the reason. Number one, it is still a taboo, but at least in the literate urban countries, the taboo is decreasing because there is more awareness, and also because there is more knowledge and a clear good attitude towards mental health these days. But rural area में अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। Yeah, exactly. In urban areas, still taboo is still there, because throughout my corporate experiences, one of the major health mental health issues I normally talk with my friends, even my school friends, even my college friends, even. So they normally are, we had like normal chit chat. So they normally inform me that I am not happy. One of the reason is work pressure. Yeah. Work pressures. So most of my friends are, my background is engineering, and they are working engineering or management consulting. They are ultimately corporate sector. So they are actually 90% of them are not happy with their with their job, corporate jobs and all. So I think you also in your daily practices, you face a lot of this kind of issues also, that they are not happy with their maybe your professional work, pressure, or maybe some family issues also, personal Yeah, the issues. work-life balance is disturbed. That is the major reason that they are full of Yeah. stress. Yeah. Yeah. So could you please enlighten some more light on that, and that what are the major reasons that can be causing this mental health? Okay, we understanding that maybe your work pressure, maybe family, some sort of misunderstanding or personal relations and all. So what are the other reasons, or is there any other reasons that you face normally of this mental health also? Yeah. Or you can just make us know, because we are just here to understand, and our audience to understand what are the major reasons of mental health. And Issues. also, Yeah. I would request you to give some more give us enlighten with us some what are the symptoms in our event. Suppose my friend who is telling me that I am not happy, one of the reason is the work pressure, or maybe some sort of a personal life crisis, a relation crisis and all. That's why he or she is not happy. But how, as a friend or as a family member, how I can consider, or how when I will understand that this is a really serious issue, that that person need to consult with a psychiatrist. So what are the symptoms? What are the key symptoms? I think so that we can Okay. understand the serious issue, and then we have to consult with doctors. Yeah, when we Okay, can Mridul. So there were a lot of mini questions in a long question. So I will start with answering from the beginning. Yeah. So your first question was what are the major reasons for mental health issues? Yeah. So we call them stressors, or we call them trigger factors. Okay. So for certain people, it could be obviously a toxic work environment, which you talked about, which is especially there in the corporate sector. And I do have a lot of patients who come to me from the corporate sector who are not happy with their jobs, and the Yeah. stress levels are very high. In fact, they are made to sit for more hours than allotted. ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है उनको. से फॉर एग्जांपल अगर उनका 8 घंटे का ही काम है या 6 घंटे का ही है, they are made to sit for 10-12 hours, and they are made to finish their deadlines anyhow. And फायदा किसको हो रहा है? कंपनी को हो रहा है, लेकिन इनकी ना सैलरी बढ़ रही है, ना इनको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है. So all of those things are hampering their mental health, of course. Secondly, इसी के वजह से होने वाला वर्क लाइफ बैलेंस जो डिस्टर्ब हो जाता है. जैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ अगर ऐसी है, तो वो टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं घर पे निकलने वाली है. So this personal life of yours is also going to be hampered. तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अपने वर्क के स्ट्रेस से आया, लेकिन गुस्सा किसी घर वाले पे निकल गया, कभी माता पिता पे निकल गया, कभी अपने पार्टनर पे निकल गया, कभी अपने बच्चों पे हाथ उठ गया. This
ये बहुत कॉमनली होता है, एंड पीपल देन गो इनटू गिल्ट, एंड गिल्ट इज अनदर मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन. सो दैट्स देयर. उसके बाद ये तो डिप्रेशन हो गया. एंजाइटी लेवल्स आर सुपरबली हाई इन सच केसेस कि बिल्कुल ये टाइम तक ये खत्म ही करना है, ये खत्म नहीं हुआ तो मुझे डांट सुननी पड़ेगी वगैरह वगैरह जो चलता है. I think in every profession, not only just corporate, but yeah, in every profession more or less, yeah. especially those professions जो jobs है where you're not self-employed. Okay, in those professions you have to listen to somebody who is going to howl at you, shout at you for something or the other, and many a times you are not ready because सामने वाला भी अलग लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज उसको अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है कि ये हमने डेडलाइन इतने इतने महीने में कंप्लीट कर दी है. ठीक है, और वो शायद अपने घर के अलग चीजों से अलग फ्रस्ट्रेटेड हो जो वो आकर अपने ऑफिस में निकाल रहा है. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव हर्ड दैट इवन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर लोग गलत लैंग्वेजेस भी यूज कर लेते हैं जो यूज नहीं करना चाहिए, लाइक यूजिंग अब्यूजेस, वर्बल स्लर्स, ऑल दीज थिंग्स हैपन. कभी कभी इनके पार्टीज में, कॉर्पोरेट पार्टीज में फ्रस्ट्रेशन फिर आफ्टर हैविंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ अल्कोहल or maybe some other drugs that are taken very commonly, that is nicotine, even marijuana is taken very commonly these days. वो सब होने के बाद then the anger comes out, which probably was suppressed. So this causes both the things, now addiction issues and issues related to addiction. तो addictions तो इससे बढ़ ही रहे हैं क्योंकि आप frustrated हो, आपको कहीं ना कहीं काम होने के लिए, नंबन होने के लिए कोई ना कोई आपको सब्सटेंस अब्यूज करना पड़ रहा है. लेकिन सब्सटेंस अब्यूज करने के बाद आप कौन से पर्सनालिटी चेंज में जाओगे, दैट यू कैन नेवर गारंटी. सो एडिक्शंस कैन देन अगेन लीड टू प्रॉब्लम्स विथ योर फैमिली, प्रॉब्लम्स विथ योर ऑक्यूपेशन एंड प्रॉब्लम्स विथ योर सोशल लाइफ, ऑल द थिंग्स. ठीक है, फिर आपने मुझे मेनली सिम्टम्स पूछे. अब सिम्टम्स क्या होते हैं, तो चलिए बेसिक बात करते हैं. सपोज ओके, या प्लीज कंटिन्यू. सिम्टम्स में जाने से पहले हम if you give some more light on that के you are mentioning that these are the addiction, maybe one of the reason, and then office में work pressure के वजह से that kind of exaggerating and all these things, and then घर पे आके they are just throwing badly of that, all these exaggerations and hard work and all. So how to balance this actually as you are a psychiatrist, हम अपने इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? So is there any as a psychiatrist, what going to be your suggestions how to maintain this? Because what I think life is all about balance. लाइफ में कुछ ज्यादा भी अच्छा नहीं होता है, कुछ कम भी अच्छा नहीं होता है. It's all about balance. You have to maintain the balance in the professionally balance करना पड़ेंगे, पर्सनल लाइफ में भी, फैमिली में बैलेंस करना पड़ेंगे. इफ यू डू मोर वर्क देन फैमिली में क्राइसिस हो जाएंगे, फैमिली में ज्यादा टाइम दोगे तो प्रोफेशनली यू आर क्राइसिंग. तो कैसे बैलेंस करें? इज देयर एज अ साइकियाट्रिस्ट व्हाट गोना बी योर सजेशन? So what we suggest is compartmentalization of the mind. Now I know it is very difficult. I mean it's very easy to say कि compartmentalize कर लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है because thoughts keep running from here to there. You cannot like actually put up walls in your mind कि हाँ ठीक है, ये ऑफिस, ये घर, ये कुछ और, this doesn't work many of the times. But yes, compartmentalization अगर आप सच में सीखो and you practice it for a very long period of time, say for example 1 month or 2 months, if you do it continuously, you learn the art of compartmentalization. तो इसमें होता क्या है, इसमें हम यही बताते हैं. ये जो टर्म है compartmentalization, इसको थोड़ा सा बता सकते हो? I think it's a very technical term for me also. इसको कैसे कर सकते हैं? तो compartmentalization मतलब आप अपने ब्रेन में walls डाल दीजिए. ठीक है, now the walls should be without doors and without windows, so that this room should not be able to peek inside the other room and this room should not be peeking again in this room. So इसका मतलब ये है कि ये कंपार्टमेंट है तो ये कंपार्टमेंट में सिर्फ ऑफिस का काम चलना चाहिए, ये कंपार्टमेंट है तो इसमें सिर्फ घर का काम चलना चाहिए, और दूसरा कोई कंपार्टमेंट है उसमें सिर्फ आपके इमोशंस, आपका सेल्फ केयर, आपके फैमिली का केयर, ये सारी चीजें रहनी चाहिए.
So you know, these should not mingle, और हम वही गलती कर बैठते हैं, अच्छा, राइट? घर का हाँ, काम बाहर ले जाना, बाहर बहुत बार ऐसे होता है, वी लिसन टू अ लॉट ऑफ हस्बैंड्स की हम लोग काम कर रहे थे, हमारे बीवी का कॉल आ गया कि ये सामान ले आना, वो सामान ले आना, 4 दिन से मैं तुमको बता रही हूँ घर पर सामान नहीं आया. Then the person starts thinking, अरे बाप रे, मेरा तो अभी ये डेडलाइन है, मेरे को तो आज यहाँ पे लेट हो जाएगा. Then how am I supposed to get all of this? They will have a fight because of that. So कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कि आप जब जॉब लेने जाते हो, आप उसी टाइम पे बहुत ही क्लियर कर डालिए कि ये घंटे से ये घंटे मेरे वर्किंग आवर्स रहेंगे, इसके ऊपर आई एम नॉट गोइंग टू सिट अनदर मिनट until and unless it's an emergency, of course. मतलब जैसे डॉक्टर्स का काम रहता है, we do have emergencies and we have taken an oath that even in emergencies we will be there. तो हमारा तो डिफरेंट हो गया, बट टॉकिंग अबाउट ऑल दी अदर प्रोफेशन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एन इमरजेंसी यू आर नॉट सपोज टू सिट एक्स्ट्रा कि नहीं नहीं ठीक है, अभी ये भी कर लो, वो भी कर लो. काफी लोग घर पे भी लैपटॉप में आकर काम करने लग जाते हैं. That should also be avoided. So you are supposed to tell your bosses or your company कि हम ऑफिस में भी 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं बैठेंगे, और हम घर जाने पे भी ऑफिस को टाइम नहीं देंगे, या ऑफिस के काम को हम टाइम नहीं देंगे, ठीक है. सेकेंडली, घर आने के बाद यू शुड बी कंप्लीटली डिवोटेड टू योर घर. अब घर मतलब क्या? नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ अ हाउस, नॉट अ होम, ठीक है. हाउस मतलब हाउस के काम भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आज ग्रोसरीज आ गई क्या, खाना बन गया क्या, या खाना बनाना है. अ लॉट ऑफ पीपल लिव अलोन, so probably they have to get their own vegetables, cook for themselves, वो सारे भी काम रहते हैं. You're exhausted, so you have to do all of those things. But also comes in their personal care, which means maintaining personal hygiene. तो आप आकर नहाओ, wear fresh clothes, अच्छी हेयर स्टाइल करिए, feel good from within, put on a good perfume that you like, put on a good room freshener, enjoy that process of self cleansing. And then comes of course your family members, जिसमें है आपकी mother, father, maybe siblings, maybe a partner, maybe your children, जो भी आपके फैमिली में, ग्रैंड पेरेंट्स है, बहुत से लोग हो सकते हैं. तो उनके इमोशंस को ध्यान देना, व्हाट दे नीड. अगर आपको 7-8 आपके फैमिली मेंबर्स में से एक भी कोई अपसेट लग रहा है, तो यू शुड बी एबल टू गो एंड टॉक टू देम कि आज आप ठीक नहीं लग रहे हो, कुछ इशू है क्या, टॉक टू मी फॉर 10 minutes, समथिंग लाइक दैट. So a lot of times I advise this 20-20-20 policy, which means कि घर जाने के बाद 20 मिनट आप बात करिए खुल के, आपके फ्रस्ट्रेशंस के बारे में, दिन भर के फ्रस्ट्रेशंस के बारे में. और अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ है कुछ भी उस दिन, जरूरी नहीं है कि रोज रोज फ्रस्ट्रेशन ही उठते आ जाए, ओके. शायद उस दिन you have been happy also, something good has happened in your life, okay. So you can talk about that, but then give only 20 minutes to that. Don't extend it, because the other person also needs to speak for 20 minutes with your full attention. तो यहाँ पे सिर्फ टॉकिंग एंड लिसनिंग का चलता है to first 20 minutes में, and nothing else. You're not supposed to speak in between. And the last 20 minutes you can devote to talking to each other on those points that you have talked in the first 40 minutes. Whether उस पे कोई सोल्यूशन निकल सकता है साथ में बैठ के, अगर कोई फ्रस्ट्रेशन किसी का दूर हो सकता है, कोई खुशी की चीज है तो उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं. So all these things need to be decided in the last 20 minutes, and then lead a cheerful family life. Go to bed on time, eat your dinner on time. ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हम बोलते हैं कि लाइफस्टाइल का मेंटल हेल्थ से क्या रिलेशन है, लेकिन बहुत बड़ा रिलेशन है, और दोनों का आपस में भी वाइसी वर्सा भी रिलेशन रहता है. मेंटल हेल्थ अच्छी हो तो ही आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, लाइफस्टाइल अच्छी हो तो ही आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी. Yeah, exactly. Because if you're mentally not healthy, then you can't consider yourself as a healthy person. Because you can't. Body is running through our brain. It's obvious, and that's, I think, mental health is, I think, one of the important that we should consider.
through in our life also कि mental health को हमें priority देना. I don't understand why people are not taking it very seriously till the date. Because इट इज बिकॉज फिजिकल हेल्थ अगर खराब होती है तो उसके सिम्टम्स बहुत इजीली दिख जाते, राइट. मेंटल हेल्थ खराब होती है तो उसके सिम्टम्स आइडेंटिफाई करना फैमिली मेंबर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या आइडेंटिफाई करना है. एग्जैक्टली ऑन दैट आई जस्ट आप जैसे बोल रहे हो कि वो आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाता है. तो बिग कंसर्न हियर कि कब हम ऐसे समझे उसको कि व्हाट आर द सिम्टम्स नाउ कि भाई हाँ अब ये नाउ द इट्स बिकमिंग वेरी serious issue for that particular person, maybe my friend, maybe my parents, my siblings, family members, friend circles. किसी को अगर जब हम बात करेंगे तो कैसे हमें कब समझ में आएंगे हाँ now this is becoming a very serious issue, we should consult a psychiatrist. तो वो symptoms कब मिलेंगे, कैसे वो हम समझे as a friend or as a family member, if someone of our family or friend circle is facing like that kind of depressions and all, हम कैसे समझ सकते हैं उसको. करेक्ट, क्योंकि जनरली पेशेंट के साथ खुद को हो रहा है, वो पेशेंट को खुद को समझ में नहीं आता, तो इट्स द क्लोज वंस हु अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. तो डिप्रेशन के सिम्टम्स की अगर हम बात करें जो फैमिली मेंबर्स इजीली पहचान सकते हैं, दैट इज कि पेशेंट का कांस्टेंट सैडनेस ऑफ मूड है. कॉन्स्टेंटली द पेशेंट इज अपसेट, कॉन्स्टेंटली सैड, नॉट इंटरैक्टिंग मच, जितना पहले करता था, जितना पहले इंटरैक्टिव था उतनी बातचीत ही नहीं करता आजकल, शांत ज्यादा हो गया है, या फिर बिना किसी बात के या कोई भी थोड़ी सी बात हो गई तो रोना आ जाता है. ओके. फिर स्लीप एंड एपेटाइट साइकिल डिस्टर्ब हो जाना, कि या तो ऐसे दोनों भी तो हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा खाने लग गया है पहले से, या तो बहुत कम खाता है. अच्छा. या तो बहुत ज्यादा सोता है पहले से, या तो बिल्कुल सोता ही नहीं. देन देयर इज समथिंग कि पेशेंट अगर कॉन्स्टेंटली आपको किसी गिल्टी एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है कि ये ऐसा ऐसा हुआ, मुझे उसका बहुत गिल्ट है, मुझे उसका बहुत गिल्ट है, तभी भी समझना चाहिए देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि गिल्ट इतने लेवल का भी नहीं होना चाहिए कि पेशेंट के मेंटल हेल्थ को ही हैम्पर करने लगे. ओके. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एनेडोनिया. एनेडोनिया का मतलब ये होता है कि जो चीज, जैसे कि जो मुझे पहले बहुत करना पसंद था, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई फेवरेट टीवी सीरियल था जो मुझे देखना बहुत पसंद था, या आई यूज्ड टू प्ले प्रोबेबली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या मुझे कोई स्पोर्ट्स की आदत थी, मैं क्रिकेट खेलने जाती थी आधा घंटा रोज दिन में, या मेरा कुछ फेवरेट कुछ रेस्टोरेंट में खाने का मन करता है, ऐसी थिंग्स लाइक दीज. ओके. और वो अभी मेरे को बिल्कुल ही वो सब करने का मन नहीं करता. सो लूजिंग इंटरेस्ट इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो अ मेजर साइन. देन हैविंग डेथ विशेस. मैं मर क्यों नहीं जाता, मेरा क्या काम है इस दुनिया में, आप सब के ऊपर तो मैं बोझ ही हूँ, थिंग्स लाइक दैट. उसको भी टॉप अगर करना है, देन देयर आर सुसाइडल आइडिएशन, कि मैं खुद को कुछ कर डालूं. तो इसमें दो चीजें रहती है, या तो सिर्फ आइडियाज आ रहे हैं सुसाइड के, या तो इंसान अटेम्प्ट भी कर रहा है. तो सुसाइडल आइडिएशन रहना एक तरफ हो गया. अगर अटेम्प्ट के साथ आ रहा है तो मतलब दैट इज मोर सीरियस. इसका ये मतलब कि बहुत सारी उसने गोलियां खा ली एक साथ, या फिर उसने अपना रिस्ट कट कर लिया, या फिर वो कहीं से कूद गया, या फिर उसने फिनाइल या ऐसा कोई सब्सटेंस पी लिया जानबूझ के, जिसकी वजह से उसको पता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स जल जाएंगे, या फिर उसने गन रखना शुरू कर दिया कि कभी ना कभी खुद को मारूंगा, या फिर उसके आसपास रस्सी दुपट्टे वगैरह ज्यादा दिखने लग गए हैं, कि उसने प्लान करके रखा है कि मैं कभी किसी दिन अपने आप को हैंग करूंगा, या अचानक से रैट पॉइजन या किसी पॉइजन के डब्बे ज्यादा दिखने लगना घर पे, या अगर कोई बार बार छत विजिट करने जाता है जो पहले नहीं करता था और छत के रेलिंग पे खड़ा हो जाता है, या फिर कोई रेलवे ट्रैक बार बार विजिट करने चला जाता है, किसी दिन यही सोच के कि मैं यहाँ पे लेट के मरूंगा या वहां से मैं कूद के मरूंगा, सच थिंग.
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस. ऑल्सो डे टू डे लाइफ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करना कि वो इंसान अपना हाइजीन मेंटेन करता है कि नहीं पहले जैसे उसको दिखना अच्छा लगता था, यू नो, पर्टिकुलर एक ड्रेसिंग स्टाइल रहता है, एक लुकिंग स्टाइल रहता है, एक हेयर स्टाइल रहता है. वो चेंज हो रहा है. वो चेंज हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है, नहाने नहीं जा रहा है दिनों दिन, यू नो, कपड़े नहीं मतलब बदल रहा है. लाइक से एक जो नॉर्मल एक डे टू डे एक्टिविटीज जो होता है जो पहले करते थे वो काफी हद तक चेंज होने लग जाता है. हाँ, The person हाँ, is somehow, not very happy with their, life, because of that kind of as a friend. जो मैं एक फ्रेंड को पहले देखता था वो उसका एक्टिविटीज चेंज होने लग गया. वो कुछ वेरी नेगेटिव बातें करता है. हाँ, नेगेटिव थॉट्स, हम्म कांस्टेंट नेगेटिव बातें करना कि हम्म दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरा काम अच्छा नहीं है, मेरे घर वाले अच्छे नहीं है. नथिंग इज गुड, आई मीन फॉर देम नथिंग इज गुड. हम्म हम्म. These are the symptoms that can help और us. डिप्रेशन जी, हम्म एंजाइटी में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको किसी को पैनिक अटैक आते हुए दिख सकता है या बहुत एंशियस है, यू नो, जैसे छोटी छोटी चीजों को लेकर उसको घबराहट होने लगती है, अनइजीनेस होने लगता है, रेस्टलेसनेस होने लगती है. ओके. और फिर उसके बाद उसका, यू नो, एंजाइटी की वजह से वो जो काम करने जा रहा है वो उसका हो ही नहीं पा रहा, हम्म विच इज कॉल्ड परफॉर्मेंस एंजाइटी, राइट. या फिर स्टेज फ्राइट है, किसी को इतना स्टेज फ्राइट है कि स्टेज पे या इवन ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे अपन बैठे हैं, यू नो, एंजाइटी की वजह से बोल ही नहीं पाना, एक भी शब्द ना निकल पाना, या निकल भी रहा है तो बार बार ब्लैकआउट हो जाना, अटक जाना, ऐसी चीजें होना. फिर उसके बाद पैनिक अटैक्स भी रहते हैं. पैनिक अटैक्स में ऐसा होता है कि सिवियर पैल्पिटेशंस होती है, मतलब दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि वो आपको फील होने लगती है आपके चेस्ट में. फिर अच्छा. आपको ऐसे, हाँ, फिर आपको ऐसे ऐसे ट्रेमर्स आ सकते हैं. ठीक है. आपको अचानक से बहुत सारा पसीना आ रहा है और आप हाइपर वेंटिलेशन कर रहे हो, जैसे कि आपको सांस नहीं आ रही है ढंग से और आप ब्रेथलेस हो रहे हो और ऐसा सब होने लगता है आपके साथ. तो ये जो चीजें हैं इसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं. इसमें फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम भी इन्वॉल्व है, जिसका मतलब ये होता है कि उस टाइम पे ऐसी फीलिंग आना कि मेरी लाइफ अभी खत्म होने वाली है, मेरे शरीर से अभी जान निकलने वाली है. तो इस हद तक की भी एंजाइटी लोगों को हो सकती है. So we understood about some sort of symptoms. Okay, they are, they're becoming very negative, personality as compared to their earlier life and all. So ये symptoms हमें पता चले गए. And you have also mentioned that OCD. So could you please explain something about OCD, because technically what is this, I don't know. So क्या कुछ explain कर सकते हो उसको, so that we can understand on that part also. Yeah. Okay, Mridul. So we'll do it very briefly and quickly because हमारा पॉडकास्ट ऑलमोस्ट 10 to 12 एपिसोड्स का रहने वाला है और उसमें हम लोग हर एक डिसऑर्डर को मेजरली विद अ लॉट ऑफ अटेंशन कवर करने वाले हैं. इसलिए Sure. आज मैं फटाफट सिर्फ जो सिम्टम्स आप फटाफट आइडेंटिफाई कर सकते हो वो मैं बता देती हूँ. तो ओ मतलब ऑब्सेशन, सी मतलब कंपल्शन एंड डी मतलब डिसऑर्डर. तो दिस इज कॉल्ड एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ठीक है. अब ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग में बार 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 अनवांटेड अननेसेसरी थॉट्स आए जा रहे हैं. अच्छा. ओके. जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे. सी जनरली वी कैन कंट्रोल आवर थॉट्स कि ओके अभी मैं यू नो अपने बेडरूम से चल के हॉलवे में आई हूँ, अभी मैं यहाँ से लिविंग रूम जाऊंगी, लिविंग रूम में जाके मैं टीवी ऑन करूंगी क्योंकि ये सीरीज मुझे देखनी है, ये ओटीटी पे. उसके बाद आई विल हैव डिनर, डिनर में क्या बना है, लाइक सादी सिंपल लाइफ. ओके. जनरली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले लोगों के साथ क्या होता है कि उनको अनवांटेड अननेसेसरी थॉट्स रिपीटेडली आते रहते. थॉट्स या आइडियाज या इमेजेस. ओके. जिसकी वजह से दे आर कॉन्स्टेंटली प्रीऑक्यूपाइड एंड डिस्टर्ब. एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद मैजिकल थिंकिंग. अभी मैजिकल थिंकिंग क्या होता है? जनरली ये कि अगर जो थॉट आया उसके ऊपर मैंने एक्शन नहीं किया तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा इस दुनिया में मेरे वजह से. ओके. तो अगर ये ऑब्सेशन को मैंने
फुलफिल नहीं किया, तो समथिंग रॉन्ग विल हैपन ईदर विद मी और माय लव्ड वन और विद दिस वर्ल्ड और विद दिस सोसाइटी, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो ये काफी बार थॉट्स कन्वर्ट होते हैं कंपल्शंस में. अभी ऑब्सेशंस तो आप पहचान नहीं सकते क्योंकि किसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको क्या मालूम, पर आप कंपल्शंस डेफिनेटली पहचान सकते हो कि अगर कोई इंसान बार बार जाके चेक कर रहा है कि दरवाजा बंद है कि नहीं, 1000 बार लॉक करने के बावजूद बंद है कि नहीं, बंद है कि नहीं, बंद है कि नहीं, गैस का स्टव चेक कर रहा है बार बार, मैंने बंद किया था कि नहीं, किया था कि नहीं. ओके, फिर बार बार इसका भी ऑब्सेशन रहना, जैसे ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन बोलते हैं, कंटामिनेशन और डर्ट. अगर इसका ऑब्सेशन है तो इसका कंपल्शन क्या रहेगा, बार बार खुद को साफ करते रहना, रिपीटेड हैंड वॉशिंग, रिपीटेड बेदिंग, रिपीटेड चेंजिंग ऑफ क्लोथ. तो ये सारे कंपल्शंस आपको दिखने लगते हैं आपके लव्ड वन में, और वो पहचान के फिर आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हो. So this is a very brief of what OCD is. We will cover an entire episode of OCD because it's a very important disorder. Yeah. तो ये in other basic words, है. we can cover on that in detail on that definitely. Yeah. So, Dr. Surbhi has beautifully talked about anxiety, depression, and those comes under the category of neurotic disorders and neurotic symptoms, as we all know. So, could you True. please talk more about other psychotic disorders or symptoms that are present? Correct. That is a very appropriate question, Zarka. So what happens is कि ये तो हमने न्यूरोसिस की बात कर ली, और ये बेसिक न्यूरोसिस के लिए हमने पहले इसलिए बात की क्योंकि पेशेंट्स जनरली ये सिम्टम्स लेकर हमारे पास आने को नहीं देखते, क्योंकि मैंने सेशन के बिगनिंग में क्या कहा था कि साइकियाट्रिस्ट तो सिर्फ पागलों के डॉक्टर्स होते हैं, तो साइकियाट्रिस्ट के पास सिर्फ साइकोटिक्स ही जाते हैं. तो ये मिथ को बर्स्ट करने के लिए इसलिए हमने पहले न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स कवर किए. सारे कवर नहीं हुए हैं डेफिनेटली, बट हम धीरे धीरे करते जाएंगे. अब साइकोटिक डिसऑर्डर्स पे आते हैं, जिसमें सबसे मेन दो जो पूरी दुनिया इन दो चीजों का नाम जानती है, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव हर्ड अबाउट दिस. तो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया में रहते हैं डिल्यूजन, हैलुसिनेशंस. अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या होता है. डिल्यूजन मतलब कोई एक चीज है, ठीक है, उस पे इतना दृढ़ विश्वास बना के रखना, मतलब अनवेवरिंग बिलीफ ऑन समथिंग विच मे और मे नॉट बी द रियलिटी. ओके, ये बहुत ही अनसाइंटिफिक लैंग्वेज में मैंने समझाया ताकि ऑडियंस को समझ सके. तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने मान लिया, मैंने आप दोनों को देखा और मैंने अपने मन में ये थॉट बना लिया, एक आइडिया आ गया मेरे मन में कि जारका और मृदुल मिलके दूर खड़े रहकर मेरे बारे में ही बात कर रहे हो, मेरी बुराई ही कर रहे हैं. अगर मैंने ये मान लिया तो ये तो चलो मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने सपोज आपको पूछ भी लिया, अरे तुमने वहां खड़े के क्या बात कर रहे थे, एंड देन यू टेल मी अबाउट व्हाटएवर, कि हम पॉडकास्ट की बात कर रहे थे या इसकी बात कर रहे थे, उसकी बात कर रहे थे, व्हाटएवर. हो गया. उसके बावजूद लेकिन मैंने ये मन बना लिया है कि नहीं, मुझे आप दोनों पे शक है ही और आप दोनों मेरी बुराई ही कर रहे थे और आप मुझसे झूठ बोल रहे हो. दैट इज अ डिल्यूजन. which is abnormal and forcefully हो रहा है कुछ यहाँ पे. Yes, abnormal and forcefully हो रहा है, and even after providing evidence to the contrary, मतलब एविडेंस भी सपोज मुझे उसका प्रूफ भी मिल गया कि नहीं, जारका और मृदुल मेरी बुराई नहीं कर रहे थे, वो तो एक्चुअली काम की बात कर रहे थे, उसके बावजूद लेकिन मैं मान के रखूंगी कि नहीं, जो मैंने सोचा था वही सच है, इसको हम डिल्यूजन कहते हैं, विच इज अ साइकोटिक सिम्टम. तो अगर आपके पहचान में कोई ऐसा इंसान है जो इस हद तक शक करता है, उसको सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद भी कि तेरा शक गलत है, ऐसा नहीं है, तो देन यू शुड शो दैट पर्सन टू द डॉक्टर. जैसे ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी. मतलब अपने पार्टनर पे शक करना कि इसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, और ये पक्का मुझे पता है कि है ही है. इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रूफ्स, इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, उसके बावजूद वो पार्टनर मानता ही रहता है, और उसकी वजह से मिसबिहेवियर उसका शुरू हो जाता है टुवर्ड्स द पार्टनर, एंड अ लॉट ऑफ टाइम सच रिलेशनशिप्स ब्रेक. बट ये समझना जरूरी है कि अगर ये डिल्यूजनल लेवल का है तो इसको ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता है.
अच्छा. ओके. सिमिलरली देयर इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. मैं कॉमन डिल्यूजन बता रही हूँ, डिल्यूजन तो हजारों है, बट मैं कॉमनेस्ट बता रही हूँ आपको. तो अनदर कॉमन डिल्यूजन इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. परसिक्यूशन मतलब जारका मुझे मारने के पीछे पड़ी हुई है, मिर्दुल ने आज मेरे लिए जो खाना बनाया उसमें जहर है, ये दोनों मिलके मेरे विरोध में ही है, बस मैंने मान लिया है यही सच्चाई है. तो मैं जारका के बनाया हुआ हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, मैं मिर्दुल के साथ कहीं अकेले बाहर नहीं जाऊंगी, मैं हर वो चीज अवॉइड करूंगी जिससे मुझे आप लोगों से मिलना पड़े या आप लोगों से इंटरेक्ट करना पड़े, बिकॉज आई विल कॉन्स्टेंटली हैव दिस डाउट ऑन यू. ओके. अदर वर्ड्स में इसको हम पैरानोइया भी कहते हैं. ओके. नाउ कमिंग टू हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन क्या होते हैं कि जो चीज नहीं है वो भी लगना की है. अब हमारे 5 सेंसेस हैं, पांचों सेंसेस के हेलुसिनेशन हो सकते हैं. ओके. द फर्स्ट सेंस इज, you can say maybe the sense of hearing, auditory. ठीक है. तो जो आवाजें नहीं है वो आवाजें भी मुझे सुनाई आती है. ठीक है. उसको कहते हैं हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन. सेकेंड सेंस विजुअल, देख पाने का. ठीक है. जो चीजें नहीं है यहाँ पे वो चीजें मुझे दिख रही, दैट इज विजुअल हेलुसिनेशन. ठीक है. तीसरा हो गया टच, जो फील होता है अपने को, राइट. अब जो चीजें मुझे टच नहीं कर रही है उसका भी मुझे सेंसेशन हो रहा है कि मुझे अभी कॉटन ने टच किया या मेरे बॉडी पे कोई इंसेक्ट चल रहा है, सच टाइप ऑफ फीलिंग्स. ठीक है. अगेन दैट इज देन टैक्टाइल हेलुसिनेशन, टच का हेलुसिनेशन जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. चौथा हो गया गस्टेटरी. गस्टेटरी मतलब टेस्ट. टेस्ट का हेलुसिनेशन होना मतलब बार बार कोई खट्टा ही खा लिया मैंने, शायद मैंने कुछ मीठा ही खा लिया है, मैंने कुछ नमक वाला ही कुछ ज्यादा खा लिया है, जबकि आप कुछ खा भी नहीं रहे हो, बट यू गेट दैट सेंसेशन ऑन योर टंग. सो दैट इज गस्टेटरी. एंड लास्ट इज ऑल्फैक्टरी. ऑल्फैक्टरी जिसमें मतलब स्मेल का सेंसेशन. ओके. तो कई बार वो स्मेल्स आना जो आजू बाजू नहीं है, स्पेशली उसमें गंदी स्मेल्स ही आती है, जैसे कि कूड़े कचरे की स्मेल आना या खाना खराब हो गया उसकी स्मेल आना, और सबसे हाई लेवल अगर रहे तो फिर मरे हुए डेड बॉडीज की भी स्मेल कुछ लोगों को आती है. ओके. तो ये सारी चीजें वो है, मतलब जो नहीं है वो भी एक्सपीरियंस करना. दोज आर हेलुसिनेशन. जो जब हेलुसिनेशन करेंगे ऐसे, so she or he gonna inform this to his family or his friends or her friends. हाँ, और नहीं तो डेफिनेटली. वो बताता ही नहीं है क्या? जैसे कि ऑडिटरी और विजुअल की जो बात होगी, उसमें क्या होता है दैट दे आल्सो टॉक टू दोस पर्सनालिटीज दैट दे सी और दे हियर. तो बहुत बार अगर वो ना भी बताए अपने फैमिली मेंबर्स को, लेकिन वो अकेले में बड़बड़ाता है, ऐसे बोलते हैं फिर फैमिली मेंबर्स आके कि अकेले में बड़बड़ाता है, अकेले में मुस्कुराता है, अकेले में रोने लगता है. हाँ, लेकिन टैक्टाइल वगैरह, टैक्टाइल में भी क्या होता है, जैसे कुछ चल रहा है उनके शरीर पे तो उनको क्या, वो ऐसे ऐसे करते रहेंगे पूरे टाइम. अच्छा. तो उनको पूछो कि क्या कर रहे हो तो वो बताते नहीं, नहीं मेरे मेरे शरीर पे कीड़े चल रहे हैं या कुछ तो चल रहा है. ऐसी चीज है. और नाक के स्मेल का तो वो डेफिनेटली बताते हैं, क्योंकि स्मेल्स इतनी गंदी आती रहती है उनको कि वो पूछते हैं ऐसा कि कुछ सड़ गया है क्या, कोई मर गया है क्या, ऐसे. गॉट इट. तब हमें पता चलेगा. और टेस्ट का भी बताते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा कड़वा या गंदा टेस्टिंग खाना नहीं खाना चाहेगा, राइट. या फिर अननेसेसरीली उसको टेस्ट आ रही है तो वो खुद भी सोचेगा कि ये कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, आई शुड शो अ डॉक्टर. तो ये दो चीजों में डेफिनेटली लोग अपने रिलेटिव्स को बताते हैं. फिर उसके बाद आता है कि नेगेटिव फीचर्स. अब नेगेटिव फीचर्स बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं डिप्रेशन के साथ, इसलिए वो डिस्टिंग्विश करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन चलो, डिप्रेशन के भी सिम्टम्स है तो भी आपको डॉक्टर के पास लेके जाना ही है. तो डॉक्टर आगे वो स्किज़ोफ्रेनिक नेगेटिव फीचर्स है कि डिप्रेसिव नेगेटिव फीचर्स है, वो डॉक्टर बराबर निकाल लेता है. ठीक है. तो नेगेटिव फीचर्स में वही सब है, सेल्फ हाइजीन नहीं रखना, सेल्फ केयर नहीं रहना,
विड्रॉन बिहेवियर रहना है, इसका मतलब वो सोसाइटी और अपने लोगों से विड्रॉ हो गया है, नॉट टॉकिंग, नॉट इंटरेक्टिंग, नथिंग. हम्म So those are negative features. Then जैसे मैंने बोला कि ये हेलुसिनेशंस जो रहते हैं या फिर जो ये डिल्यूजन्स रहते हैं, ये डरावने भी रह सकते हैं, राइट? कि अगर मेरे को मृदुल और जारका का डर लगने लग गया है तो मैं तो फियरफुल रहूंगी ना पूरे टाइम आपके आसपास. या इवन दोनों चीजों में, अगर मैं आपको लेकर डिल्यूजनल भी हूँ जो मैंने पहले समझाया, और दूसरा अगर मैं आपको लेकर हेलुसिनेट भी करने लगी हूँ तो भी मैं आपसे दूर रहना चाहूंगी. तो फियरफुलनेस भी पेशेंट में दिखने लगता है, अगर वो भले ही हेलुसिनेशंस के बारे में अपने ना बताए, बट वो फियरफुलनेस, वो डर जो है वो दिखने लगता है पेशेंट को. ठीक है. काफी बार लेकिन उल्टा भी हो सकता है कि ऐसे डरावने हेलुसिनेशंस या अपने डिल्यूजन्स की वजह से इंसान एग्रेसिव और वायलेंट भी हो सकता है. अच्छा. तो एग्रेशन एंड वायलेंट जो कि उस इंसान की जनरल पर्सनालिटी नहीं है, दैट मीन्स उसको दिखाना जरूरी है. क्योंकि कुछ लोग तो वैसे पर्सनालिटी वाइज भी रहते हैं ना, ओरिजिनली वेरी एग्रेसिव, ओरिजिनली वेरी हॉट हेडेड. उनको अगर अपन छोड़ दे, मैं बात कर रही हूँ जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है विच इज वेरी माइल्ड नॉन एग्रेसिव काइंड ऑफ पीपल, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है देन देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद इट. फिर आता है सोशो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट. इसका मतलब ये कि आप अपने सोसाइटी के साथ ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने काम में अच्छे नहीं हो, मतलब ऑक्यूपेशनली यू आर नॉट डूइंग वेल. अगर स्टूडेंट है तो एजुकेशनली यू आर नॉट डूइंग वेल. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है. और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे न्यूरोटिक जो डिजीजेस मैंने बताए हो गए, डिप्रेशन, एंजाइटी की भी बहुत सारी वेराइटीज है, ओसीडी हो गया, सब्सटेंस अब्यूज हो गया, बहुत सारी चीजें आती है इसमें, तो जिसके बारे में हम चर्चा आगे के एपिसोड में डेफिनेटली करेंगे. तो इसमें इंसान को इंसाइट रहता है, इसका मतलब उसको मालूम रहता है कि ये मेरे साथ गड़बड़ हो रही है, आई मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी. ठीक है. एट द सेम टाइम लेकिन साइकोटिक डिसऑर्डर्स में इंसान को इसका इंसाइट नहीं रहता है. उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे साथ सब ठीक है, मेरे को जबरदस्ती ट्रीटमेंट के लिए लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनको वॉइसेस भी रियल लगती है, उनको जो दिखता है वो भी रियल लगता है. और वो जो डिल्यूजन का मैंने जो डेफिनेशन ही बताया कि उनका बिलीफ इज सो स्ट्रॉन्ग कि उनको खुद ही का बिलीफ पे ट्रस्ट होता है. उनको वो नॉर्मल समझते हैं बट अल्टीमेटली ही और शी इज नॉट नॉर्मल ऑफ दैट केसेस. एग्जैक्टली. ठीक, बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की. ठीक है. तो बाइपोलर मतलब क्या? बाय मतलब टू पोल्स. पकड़ के चलिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है जैसे अर्थ का, वैसे ही सिवियर मेनिया एंड सिवियर डिप्रेशन होता है बाइपोलर. ठीक है. अभी बाइपोलर का ऐसा है कि उसके बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन हम टाइप्स में नहीं जाएंगे अभी फिलहाल, वो बाइपोलर के एपिसोड में जाएंगे. अभी बाइपोलर को मैं बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब करती हूँ कि मेनिया मतलब या तो बहुत खुश रहना जो नॉर्मल लेवल नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा खुश रहना, या कई गुना ज्यादा इरिटेबल रहना. दो टाइप्स है उसमें, कई गुना ज्यादा खुश, कई गुना ज्यादा इरिटेबल. उसमें ग्रैंडियोसिटी भी आती है, ग्रैंडियोस आइडिएशंस रहते हैं, मैं तो ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा. ग्रैंडियोसिटी दो तरह की होती है, ग्रैंडियोसिटी ऑफ एबिलिटी एंड ग्रैंडियोसिटी ऑफ आइडेंटिटी. तो एबिलिटी मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी चीजें नॉर्मल. एंड आइडेंटिटी मतलब मैं बड़ा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो इससे मिलके आया हूँ, मैं तो उसके साथ बैठा हूँ, मैंने उसके साथ चाय पी है, मैं अगला पीएम बनने वाला हूँ, ऑल दीज थिंग्स. आई मीन आई एम नॉट सेइंग दीज आर नॉट पॉसिबल, बट सडन चेंज जब ऐसा होता है पर्सनालिटीज में, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा बोल रहे. हाँ, ऑल ऑफ अ सडन एकदम से ऐसा बोलना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, इमेजिनिंग थिंग्स. तो ग्रैंडियोसिटी होती है एंड दैट इज अगेन टू अ डिल्यूजनल लेवल. अब डिल्यूजन जो मैंने पहले समझाया, तो डिल्यूजनल लेवल की ग्रैंडियोसिटी रहती है. Something like that, overconfident on that particular sense. ओवर कॉन्फिडेंट भी उससे भी कई गुना ज्यादा. ओवर कॉन्फिडेंस तो फिर भी एक नॉर्मल ट्रेट है, ओके. ओवर कॉन्फिडेंस से भी कई गुना ज्यादा.
is grandiosity. Okay. नेक्स्ट भी कम टू जो मेनिया में होता है कि मेनिया में बहुत ज्यादा आपको ऐसे सिम्टम्स दिख सकते हैं अपने नोन लोगों में कि जो पहले ऐसा नहीं था लेकिन बहुत अभी जा जाके नए नए कपड़े ही खरीद रहा है, बहुत शॉपिंग कर रहा है, बहुत पैसे खर्चा कर रहा है एकदम से, ये सोच के कि मैं तो बहुत अमीर हूँ. यू नो, चेंज सच सडन चेंज इन पर्सनालिटी, ये जब होता है. बट ग्रैंडियोस चेंज, सारे ग्रैंडियोस चेंजेस ही रहते हैं. ओके. उसमें लेकिन फिर ग्रैंडियोसिटी में ये भी आता है कि उनको फिजिकली भी लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मैं 10 लोगों को उठा के पटक सकता हूँ, जो साउथ इंडियन मूवीज में नहीं दिखाते कि मैं 10 लोगों को उठा के पटक दूंगा, और वो पटकते हुए दिखाते भी है. बट दैट इज ग्रैंडियोस, एंड हम तो हंसते हैं ना राइट उस चीज पे कि हाँ ठीक है यार, ये तो वीएफएक्स से इन लोगों ने कर लिया. बट रियलिटी में ये सोचना, दैट इज हार्मफुल. इसलिए 10-10 लोगों से काफी बार भिड़ भी जाते हैं और फिर खुद ही पिट के आ जाते हैं. फिर उसके बाद एक बहुत ही दुखद चीज होती है, इसमें हो जाता है सेक्सुअल ओवर एक्टिविटी. अच्छा. तो अगर ये विमेन में होती है सेक्सुअल ओवर एक्टिविटी, देन अनफॉर्चुनेटली दे आर रेप्ड मेनी टाइम्स, व्हिच इज वेरी सैड. मेन में अगर हो जाती है हाइपर सेक्सुअलिटी, तो देन दे टेंड टू रेप विमेन एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, जबरदस्ती करना, यू नो, ये सारी चीज. तो ये हाइपर सेक्सुअलिटी की बात हो गई. तो ये सारी चीजें आती है बाइपोलर के मेनिया में. ठीक है. और डिप्रेशन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सीवियर लेवल ऑफ डिप्रेशन में अगर जब डिप होता है तो क्या होता है. तो जब ऐसे फेजेस आते हैं इंसान के लाइफ में, इसलिए हम उसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं. ओके. So I think that clarifies that. Ma'am, I have one incident to tell which actually raises a question in my mind. That one of my male friend, he was suffering from depression, and on the same, he was not able to accept that he was undergoing some mental health issue. So, is there any gender divide? Is there any gender divide, like the males being not able to accept that they do have a mental health issue? Yeah, honestly, Zarka, answering your question, even in psychiatry, we have studied, and if we look at the society at large, there is definitely a great gender divide when it comes to mental health. And again, I'm not saying that it's easier for men or it's easier for women, but you know, we have this perception created by the society for men that is, you know, men are supposed to be strong, men are supposed to be independent, men are supposed to be the breadwinners of the family, men are not supposed to be नाजुक, उनको रोना नहीं आना चाहिए, उनको मतलब उन्होंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए. So all these things, but women at the same time are treated in a different way कि women अपने expressions दिखा सकती है, अगर उनको रोना है तो वो रो सकती हैं. They can tell their friends, they can tell their relatives about their emotions and how they are feeling. तो ये चीजों की वजह से स्टेटिस्टिकली भी देखा आया है कि there are very many numbers of suicides in men as compared to women. मतलब suicide के ऊपर भी actually एक major topic है, and we should have an episode because that is a psychiatric emergency. तो suicide में भी ऐसा देखा आया है कि men will not talk about it much, but suddenly आपको किसी दिन पता चलेगा कि इन्होंने suicide कर लिया. Women will talk about it, give multiple warnings to people कि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं suicide कर लूंगी, and some or the other day in the future they will attempt. तो women की एक certainty रहती है जो हमको पहले से पता रहती है. Men can suddenly do it. इसलिए फिर हमको उनके रिलेटिव से पूछना पड़ता है कि उनके साइंस क्या थे. बट अगेन सुसाइड इज वन टॉपिक. देयर आर मल्टीपल अदर टॉपिक्स जिसमें अगेन एज आई टोल्ड यू द प्रीपोंडरेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज इज मोर इन मेन when it comes to depression, when it comes to anxiety and all the neurotic disorders which can be actually told to some psychiatrist or maybe at least told to a friend. लेकिन अभी मृदुल, you are a man.
you can, be very much okay bhi nahi, but you can relate to these things that I'm saying right now. Okay, I'm about Yeah, to yeah, say. yeah, yeah. अरे मर्द है, मर्द बन, क्यों रो रहा है? हम्म, हाँ होता है ये. राइट, Yeah. होता है. Even now, friend circle में people normally ask कि friends normally ask कि भाई why you're behaving like girl. मतलब हम रो भी नहीं सकेंगे, हम खुल के किसी चीजों में अपना कुछ पर्सनल इशू भी है वो उतना जो which is something related to your mental health and all, वो खुल के बता भी नहीं सकते हम अपने. इवन नॉट विद फ्रेंड को बता देंगे तो वो बहुत बड़ा केओस बन जाएंगे. आई एम टेलिंग यू. एंड देन अगर अपने फैमिली पेरेंट्स को भी बताएंगे, दे आर आल्सो नॉट टेकिंग इट वेरी वेरी एम्पैथेटिकली. तो ये यहाँ पे Yes, एक yes. प्रॉब्लम है, एक गैप है दैट आई अंडरस्टैंडिंग. सो नाउ नो, एंड क्या. ऑल्सो लाइक अभी विमेन की भी अगर हम बात करें स्टीरियोटिपिकली, तो अगर वो थोड़ा भी, इफ शी लाइक, आई एम टॉकिंग अबाउट सम फैमिलीज दैट आर वेरी रिलीजियस. हम्म, ओके, तो जीन्स पहन के नहीं जाना, शर्ट पहन के नहीं जाना, तुम सूट्स पहन नहीं सकते, आई मीन द एग्जीक्यूटिव ब्लेजर एंड ट्राउजर्स वाले, हम्म, यू कैन नॉट वेयर देम एंड ऑल ऑफ हम्म, दीज. हम्म, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन उसके बाद इफ शी ट्राइज टू बी लाइक द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, और अगर उसके हस्बैंड को इस चीज से प्रॉब्लम है, ओके, हम्म, हम्म, then even if she calls her own mother, her own mother will tell her कि नहीं नहीं, you should earn less than your husband, क्या जरूरत है, अगर वो घर पे आता भी है तो वो भी तो थका हुआ होता, तो तू उसको चाय yeah, बना के दिया कर. Whereas really, both of them have equal working hours, both of them are struggling equally. Probably the female in some families are earning more than the male, बट हम्म, इट इज नॉट टॉलरेबल. तो स्टीरियोटाइप्स की वजह से बहुत इश्यूज है, क्योंकि हमने स्टीरियोटाइप्स बहुत सालों से बना के रखे हैं, बट वी हैवंट चेंज्ड देन फॉर द अर्बन पॉपुलेशन or for the literate working women population, हम्म, and it needs to be done. In fact, I have a help at home, a male help, who is हम्म, very sensitive. I हम्म, mean, he is not told by anyone from our family that why are you crying on some such small issues and why are you creating a scene. I mean, if he हम्म, feels like crying, he is encouraged. Okay, what is the issue? Tell us. हम्म, हम्म, I am like an elder sister to him. So this is how I think it should be. हम्म, right, I right. mean, when my father fell sick, he was on a high dose of steroids, and he used to have a lot of mood swings. And the हम्म, person who was always a strong rock in front of me was crying in front of me for no reason at all. And he was also not able to describe the reason because it was steroid induced. हम्म, But then I told him, नहीं नहीं डैडी, ये steroid induced है, टेंशन मत लो, हो जाएगा ठीक, और भी कुछ है तो बताओ. But then he was also very, sad because of his health deteriorating and all of that. So, these things happen. Why can't men cry and why can't women laugh loudly? ये exactly. क्वेश्चन आप प्लीज, जितने भी लोग देखेंगे, प्लीज कमेंट्स में लिखिए, हमको जानना है. Exactly. ये बहुत ही important point need to be covered here कि and I'm also understanding that अपने male society में male के circle में, society in the sense male circle में, people are not used to cry actually, and we are facing the daily life work pressures, family issues, that and all. That's why we are not coming up with open mind actually. So it need to be changed. It need to be changed where cry is needed. Cry in front of your parents, in front of your closer one and all. I And think crying and laughing should be gender neutral. There is nothing gender specific in it. hmm, And I think, when we talk about gender, that is going to be another huge episode. So I think hmm. we should like curtail it here and move ahead with the show. Yeah. Anyways, so I think we are coming to the closing. It's taking out at around 1 hour now. So we are coming to the conclusion. So before that, I just wanted to understand some sort of research perspectives and policy perspectives. So Dr. Surubi, could you please enlighten us some sort of government policies? Because see, when it is
coming to the mental health, as it's a, we are mentioning as strongest taboo in India. So now I think that solution can be two approach. One is top down approach, another is bottom up approach. Now top down approach can be done through governments. That can be through policies, government policies, solutions and all. Because government should involve in this seriously to change Yeah. this stereotypes or taboos and all. अगर गवर्नमेंट हेल्प करेंगे, कुछ पॉलिसीज लाएंगे, कुछ ऐसा ऐसा कुछ रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज लाएंगे, तभी जाके आई थिंक इट विल बी एक कैटलिस्ट बन सकता है, जल्दी कुछ हो सकता है. ऑन द अदर हैंड बॉटम अप अप्रोच मतलब हम इंडिविजुअल लेवल में एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दिस, जो हम आई थिंक वी आर डूइंग दैट काइंड ऑफ थ्रू दिस पॉडकास्ट वी आर जस्ट ट्राइंग टू come up with a solution of bottom up approach कि हम ये through podcast we are just making it familiar to our audience कि भाई देखो mental health is really a very serious issue, you should take it seriously. Okay, so now as your expertise, you must be knowing some sort of policies that government coming up with. I just wanted to understand that what are the policies that government coming up with, and also in this case being a psychiatrist, what gonna be your suggestion, because you are not only a consultant psychiatrist but also you are doing your research work also, I know. Okay, like you are also a scholar, so you must be doing some sort of a research perspectives and policy perspectives also. So I want first please enlighten us that government existing policies, and also just tell us any kind of recommendations from your side, being a psychiatrist, and you are also leading some committees also, some other mental health committees also. So आपका क्या suggestions और recommendation हो सकता है government के लिए, so the government and policy makers can understand and they can also include this kind of solutions in their policies, upcoming policies. Yeah. So currently what the government is doing for mental health is that it is trying to establish more and more mental health asylums and mental health hospitals especially that strictly cater to mental health only, because a lot of hospitals cater to a lot of people, but mental health is just like a small department. उसमें basically 10 बेड्स रहते हैं किसी हॉस्पिटल में बेड्स रहते भी नहीं हैं, so it's just an OPD basis, या फिर OPDs भी नहीं रहती psychiatric की. So they are trying to implement it more and more. Secondly, they have tried to increase the number of PG seats. जैसे MBBS के बाद MD होता है साइकेट्री में, तो साइकेट्री का MD बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल नहीं था. तो इसीलिए मुट्ठी भर साइकेट्रिस्ट, लाइक यू वोंट इमेजिन मृदुल दैट in by the year 2019, 2019-2020, there were only 90 psychiatrists coming out every year in the nation. Can you believe that? And India having 1.4 billion population. Yes. Only psychiatrists are only 90. Oh my God. 90. हर साल निकलने वाले 90, बस खत्म. So now they have taken the charge that हर हॉस्पिटल एक अच्छा साइकेट्रिक यूनिट डेवलप करे, ताकि वो वहाँ पे MD साइकेट्री के सीट्स दे सके, और ताकि रेसिडेंट डॉक्टर्स जो बाद में साइकेट्रिस्ट बनेंगे वो बढ़ेंगे. Okay. Another very good policy that I personally really liked was that उन्होंने काफी लोगों को अब ये ना करते हुए कि फैमिली मेंबर्स को ही मेंटल हेल्थ कंसेंट देना पड़ेगा किसी पेशेंट का, लाइक मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट का कंसेंट. द पर्सन अगर मेंटल हेल्थ इशू होने के पहले अगर किसी को नॉमिनी लेबल कर दे, वो नॉमिनी कोई भी हो सकता है, इवन अ नॉन ब्लड रिलेटिव, आपका दोस्त हो सकता है, आपका पहचान वाला हो सकता है जो आपका वेल विशर हो, अगर आपकी फैमिली ही नहीं है, या आपका कोई ऐसा हो सकता है जो आपके साथ काम करता हो, बिकॉज यू डोंट हैव अ फैमिली, पर आपको उस पर ट्रस्ट है, तो यू कैन लेबल दैट नॉमिनी, गिव द नॉमिनी द एंटायर इंफॉर्मेशन, यू कैन नोटराइज द नॉमिनी लीगली, और फिर अगर आपको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो अगर आप डिसीजन लेने के हालत में नहीं हो, जैसे आप इंसाइट नहीं है आपको, तो आप डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो भरोसेमंद नॉमिनी आपका डिसीजन ले सकता है. Okay. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ऐड हुई है. उसके बाद ऑफ कोर्स जो हमारे this already existing.
This is existing No, policies. that was actually proposed. अभी existing है कि नहीं, I'll have to check. But it was proposed in 2017, तो very likely कि अभी तक शायद उसको accept कर लिया होगा. This is need to be considered because फिर क्या हो जाता है ना, if you are lonely or you don't have anyone, then the properties and all these things, if you are in mental health, then who gonna decide on behalf of you and all. So I think it need to be considered. Yes. Or any other policies that you gonna, if you think, if you consider that policies, government policies is actually in India is actually a good job done, or also from your side as a psychiatrist, you're gonna recommend to our government through this podcast or to our policy makers through this podcast कि यहाँ पे आपको काम करना चाहिए, यहाँ पे एक gap है. What do you suggest? See, I think 2-3 types of mental health are still suffering a lot in India. So number one, let me name women's mental health because आज भी women का exposure to mental health इतना नहीं है. Honestly, I mean in the rural population, it's just like mostly rural population के men ही mental health issues लेकर आते हैं because the women are very courteous to bring them. But वो women क्या suffer कर रही है वो कोई देखता नहीं है. तो there is a real lack of awareness. And the rural women also think कि ये तो हमारा job है, ये तो हमारा काम है, मतलब they don't care about these things कि नहीं हमारी भी कोई life होती है. तो ये एक major issue है. Then casteism and religionism is also there. अभी कितना भी बोलो हम लोग सोचते हैं कि these things don't percolate into the mental health system, but many a times they do. देखो कि ये कास्ट का है तो ये लोग तो यही करते होंगे इसलिए ऐसा है, ये रिलीजन का है ये लोग तो यही करते होंगे इसलिए है, तो ये सारी चीजें आई थिंक वी कैन have a very small podcast someday based on casteist and religious issues in mental health. Great. तो वो भी बहुत सारे रहते हैं. We'll plan. Then also coming to LGBTQIA issues, there are a lot of issues regarding mental health. There is hardly any access. And on that case, we're gonna plan a, I actually, because being your expertise on that, so you personally also you feel that. So I think we can make it a different podcast on that LGBTQs and all. So we are honored to have you on that particular podcast. But I think pretty much you have covered that policy perspectives, and your recommendation is going to help policy makers and government, I think. Okay. So now so coming to Jarka, do you have any other questions to ask Dr. Surabhi here? What are the in-office treatments available for certain mental health disorders? So for mental health disorders, let me just tell you in a line or two. Okay, we have a lot of pharmacotherapy. That means medications. Okay, so जैसे कुछ high level neurosis है या फिर अगर psychosis है आपको, तो medications लिए बिना आपका treatment नहीं हो सकता. तो ये जो बाबा है, क्वैक्स है, ब्लैक मैजिक है जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, उनसे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता. इनफैक्ट पेशेंट्स की जिंदगी खराब ही होती है एंड अ लॉट ऑफ माय पेशेंट्स हैव सफर्ड. वो सफर करके फिर अल्टीमेटली हमारे पास आते हैं और तब तक उनके पास उनका बहुत सारा डैमेज हो चुका रहता है. लाइक लिटरली मेरे पास अभी रिसेंटली, बिकॉज आई रिमेम्बर दिस बिकॉज इट्स अ रीसेंट एपिसोड, देयर वाज अ पेशेंट जिसकी आंखें जल गई थी पूरी तरह से. ओके, क्योंकि उसको बोला था कि जो अस्थि है और अस्थि में कुछ तो डाला गया था कपूर वपूर के साथ, गॉड नोज व्हाट इट वाज, वो आंखों पे लगाओ आप ठीक हो जाओगे. एंड फॉर 3 days she did it and she went blind and she came with that and permanent blindness. I mean it was untreatable. तो ऐसे भी चीजें होती है. तो आप प्लीज एक साइकियाट्रिस्ट पे भरोसा करिए जो MBBS पढ़ा है, MD करा है, 10 साल अपने जिंदगी उसने यही स्टडी करने में लगाए हैं कि आपकी ट्रीटमेंट अच्छे से कैसे हो सकती है. उसके बाद प्रैक्टिस तो आप भूल ही जाइए कि कितने साल की वो करते हैं आपको ट्रीट करने के लिए. तो फार्माकोथेरेपी इज नंबर 1. नंबर 2 इज काफी लोगों को जिनको माइल्ड डिसऑर्डर होता है उनको साइकोथेरेपी भी हेल्प कर सकती है. साइकोथेरेपी का मतलब है काउंसलिंग के तरीके, फिर उनको नुस्खे सिखाना,
कि आप कैसे अपनी लाइफ में जी सकते हो। उनको होमवर्क भी दिया जाता है, जैसे स्कूल में देते हैं ना, वैसे कुछ टास्क भी दिए जाते हैं कि आप ये टास्क करिए दिन में, उसको नोट डाउन करिए, फिर आपका जो होमवर्क शीट है या जर्नल शीट है उसको भर के हमको 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद दिखाइए। आई मीन पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों हेल्प करते हैं, ठीक है, वो तो एक साइकेट्रिस्ट डिसाइड करता है क्या हेल्प कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स देन बच्चे वगैरह है तो उनको बाकी थेरेपीज भी काम में आती है, जैसे प्ले थेरेपीज है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। और अगर कोई रिकवरिंग साइकेट्रिक पेशेंट है जिसको अभी मतलब मेडिसिन से वो रिकवर हो गया लेकिन अभी उसको दुनिया में वापस बाहर जाना है और वैसा ही परफॉर्म करना है जैसे वो करता था, ओके, उसके लिए फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपीज हमारे पास रहती है जो उनको धीरे धीरे करके अपने काम के तरफ सिखाने लगती है कि आप धीरे धीरे करके ये स्टेप्स लेकर आप वहां तक पहुंच सकते हैं। प्लस हमारे सोशल वर्कर्स भी रहते हैं जो गांव में जा जाकर आपको चीजें सिखाते हैं, सोशल वर्क करते हैं। तो ये सारी चीजें आर इंक्लूडेड इन साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। So I have a question here that through that we in this podcast you have nicely explained that what are the symptoms, what are the you know reason of these taboos happening in our society. क्या सिम्टम्स है हमारे फ्रेंड सर्कल में और फैमिली मेंबर्स में, क्या कैसे कैसे क्या बिहेवियरल चेंज होंगे, नेगेटिविटी ज्यादा आएंगे एंड ऑल, तो ये सब से हमें पता चलेंगे एंड देन वी शुड ऑफ कोर्स एंड देन वी शुड टॉक साइकियाट्रिस्ट एंड ऑल। तो मुझे आप ये बता सकते हो कि ये जो प्रोसेस है वंस यू कंसल्ट विद द साइकियाट्रिस्ट, तो दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर टिपिकली टू कवर रिकवरी दिस? एक्चुअली रिकवरी डिपेंड्स ऑन द डिसऑर्डर यू हैव। तो ऐसा क्लियरली नहीं बोल सकते कि किसी को मतलब देयर इज अ डिवीजन ऑफ माइनर, मॉडरेट, सिवियर, then there is a difference in between psychosis, neurosis. Then जैसे मैंने समझाया आज, तो मैंने हार्डली मैंने बहुत ऊपर ऊपर से साइकेट्री को कवर किया है। I don't think I have covered even 5% of what psychiatry is. तो इतना ज्यादा वास्ट है कि हर डिसऑर्डर का अलग ट्रीटमेंट होता है और अलग ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। तो एक्चुअली हर पेशेंट की पर्सनालिटी अलग होती है, हर पेशेंट का एनवायरनमेंट अलग होता है, हर पेशेंट की फैमिली लाइफ अलग होती है, हर पेशेंट का ऑक्यूपेशनल सराउंडिंग अलग होता है। प्लस वो मेडिकेशन का कंप्लायंस रखता है नहीं रखता है, काफी बार वो छोड़ देते हैं मेडिसिन, फिर वापस रिलैप्स के साथ आ जाते हैं, कोई रिकरेंस के साथ आते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन से पेशेंट में कितना ड्यूरेशन लग सकता है, किसका पर्सनालिटी टाइप कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। I mean, there are multiple aspects and I think it will take a complete episode कि वो aspects क्या क्या रहते हैं जिसमें resistant treatment condition भी develop हो जाती है कि मतलब कुछ भी दे दो ये इंसान अभी ठीक होगा नहीं होगा मालूम नहीं। और काफी बार कुछ लोगों को, जो लोग एकदम कंप्लायंट रहते हैं, बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर की सुनते हैं, उनको तो मैंने 6 से 9 महीने के अंदर भी कंप्लीट मेडिकेशन बंद करके जिंदगी भर ठीक रहते हुए देखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद जिंदगी भर की मेडिकेशन लग सकती है। सो यू कैन नेवर से कौन सा पेशेंट किस टाइप का रहेगा। ऊपर से जेनेटिक्स बहुत मैटर करते हैं, उसकी खुद की पर्सनालिटी, उसका खुद के इमोशनल कोशेंट, उसकी खुद के कोपिंग अप मैकेनिज्म्स। I mean, there is a lot to talk about in this, लेकिन वो अभी कवर नहीं हो सकता। But it's इसलिए okay. there is no definite answer about the duration. Yeah. So I think I just wanted to understand some kind of a touch on that. Kitna durations. But I think I am getting my answer from your this explanation, a little bit short explanation, but it's more than enough for me as a layman understanding it. As you are, as per your expertise, as per your cases you faced, so it depends, of course, as per their personalities, patients level of mental health issues and all these things. But हाँ, आपके केस ऐसे भी हुआ था कि आप वो within 6 to 9 months के अंदर भी वो सब कुछ she or he got cured about their issues, mental health issues and all. That is more than enough for us to understand about some sort of understanding. Okay, so now I think we are coming to the conclusion of this podcast for today. Okay, so thank you so much, Dr. Surabhi Mitra, and it was really Most welcome, Mridul and Zarka.
Yeah, it was really very impactful sessions, and actually we as somehow successfully generated some sort of in-depth understanding about mental health, why it is taboo, what are the challenges normally male face, female faces, what are the symptoms in our families, and how we understand that, and how we should talk to a psychiatrist or consult to a psychiatrist. Okay, so now I would request to our audience, please do support us to this podcast, and we will come up some lot of other podcasts also on this particular topic, mental health. Okay, and before I finish, I just wanted to request to all the audience, please visit our site. This is because I already mentioned that this is sponsored by Empathy Life Care, which is a healthcare learning and online doctor consultation platform. So you can also directly consult Dr. Surabhi Mitra here. So we have particular form there, so you can just fill and get booking consultation with Dr. Surabhi Mitra here, and she will directly and can have a one-to-one mentorship, one-to-one consultation with you for any kind of your mental health, or any kind of treatment required. So with this, I wanted to also thank Dr. Jarka Khan also, because she is also a dentist here. She is also doctor, and she is a co-founder of this Empathy Life Care. Okay, so she is leading also this Empathy Life Care and all. So as I mentioned that this is Empathy Life Care is is a online doctor consultation platform. So even we have list of doctors associated with us, including dental, hair treatment, skin treatment, and mental health care. So if you wanted to talk with Dr. Jarka also for any kind of related, any kind of dental issues, then you can also consult to Dr. Jarka here. So yeah, with this, thank you so much. Thank you once again, Dr. Surabhi Mitra, for your Thank valuable you for time. inviting me. Yeah, for your valuable time. And I know it's taking so much time of your time. So yeah, being a very busy person, you are there. So thank you so much. We obliged. We are honored that you are you spend some time with us. Yeah, see you there in the next podcast. Thank you so much. Yeah, Yeah. Thank you. Take care and have a good night. yeah. Thank you. Thank you so much. Bye.